Hello and welcome, guys. Today we start, synthesis. So first of all, you have to know about what is synthesis exactly. In English grammar, synthesis यानी unification refers to the combination of two or more simple sentence into a new sentence. That's simple, compound, and complex. So how you define synthesis? Synthesis is the opposite of analysis, which is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts to gain a better understanding of it. In English grammar, synthesis is studies under the following heads. First is what? Combination of a simple sentence in a one simple sentence. मतलब कई सिंपल सेंटेंस को हम जब एक में कंबाइन करते हैं तो दैट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. सेकेंड इज combination of simple sentence into complex sentence. The third one is combination of simple sentence into the compound sentence. So firstly we have to know about what is simple sentence, how to forming simple sentence. The first rule, this is all about the rules. I think it's 8 rules. Okay. The first rule is what? Use of participle. How to identify what is a rule of participle. Two or more than two sentences can be combined to form one simple sentence by using participle. This very important thing is what? Using participle. In languages, a participle is a non-finite verb that has some of the characteristics and function of both verbs and adjective. मतलब ये क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और जिनका फॉर्मेशन होता है वर्ब और एडजेक्टिव से. मोर नॉर्मली participle has been defined as a word derived from a verb and used as an adjective as an languaging phase. मतलब अगर हम कुल मिलाकर कहें तो what is participle exactly? A word derived from the verb. मतलब ये लिया किससे गया है? क्रिया से लिया गया है and used as an adjective और इसको प्रयोग किया जाता है adjective में, है ना, in a languaging phase. So, how to identify participle? There are two forms of participle. The present participle, which is ending with the ing. If you're talking about ing form, that's its present participle. And the past participle, which is usually end with in ed. Okay? There are forms are used in the 3 ways called present participle, past participle, and perfect participle. The 3 things which have to maintain this. The first is forming simple by using present participle. तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का. हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू वर्क ऑन दैट. तो फर्स्टली वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव. मतलब जब हम क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे तो वो फंक्शनिंग कैसी करेगा? एडजेक्टिव की तरह करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज वेरी important to know it कि how to understand the what is exactly adjective. तो अगर हम क्रिया में ing जोड़ेंगे तो वो क्या कैसे काम करेगी? एडजेक्टिव की तरह. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की, तो when the same subject is found performing 2 action, मतलब अगर एक ही क्रिया, एक ही कर्ता 2 कार्य कर रहा है, one after another, एक के बाद दूसरा, and the second action appeared ए रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट. और जो सेकेंड एक्शन है वो दिखाई देता है रिजल्ट की तरह, किसका? कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट, पहले की तरह. द वर्ब ऑफ द फर्स्ट एक्शन इज चेंज इनटू द पार्टिसिपल. और जो तो पहले जो वर्ब का फंक्शन एक्शन होगा वो बदल जाएगा किसमें? पार्टिसिपल में. क्लियर? लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट एक्सप्लेन. देखो क्या कह रहा है. व्हेन द सेम सब्जेक्ट इज फाउंड, मतलब अगर जो 2 सेंटेंस है उसमें करता क्या है? समान है और परफॉर्म करता है एक्शन आफ्टर वन है और एक के बाद दूसरा कार्य होता है. एंड द सेकेंड एक्शन अपीयर्ड एज ए रिजल्ट. और जो दूसरा एक्शन हो रहा है वो एक रिजल्ट की तरह है. कॉन्सिक्वेंस मतलब लगातार ऑफ द फर्स्ट, और पहले के तुरंत बाद हो रहा है. द वर्ब इज द फर्स्ट एक्शन इज चेंज इनटू पार्टिसिपल. तो जो पहला काम है उसको हम किस में बदल देंगे? पार्टिसिपल में बदल देंगे. दिस इज अ मेन थीम ऑफ द फर्स्ट रूल. ठीक है. तो जो पहला काम है उसको हम किस में बदल देंगे? पार्टिसिपल में बदल देंगे. क्या लगाकर? आईएनजी लगाकर. जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सा ए फॉक्स सी रन अवे. पहले उसने लोमड़ी को देखा ना, तब वो भागा, तो सीइंग ए फॉक्स सी रन अवे.
दैट्स वेरी सिंपल। जैसे आई रीच्ड होम, आई टुक ए बाथ, पहले वो घर पहुंचा ना तब नहाया, ऐसा तो है ना पहले नहा लिया तब घर पहुंचा, तो क्या होगा, रीचिंग होम आई टू नॉट आई टू ए बाथ, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट रूल। In the participle, this is a present participle. The second rule is that by changing verb be is rm was were into being, मतलब is rm was were को हम किस में बदलेंगे, being में बदलेंगे। जैसे I was hungry, I took मतलब मैं भूखा था, दैट्स वाई मैंने क्या लिया, ब्रेड और जैम लिया। तो सबसे पहले काम क्या, अब देखो यहाँ पे हमें आईएनजी बीइंग में क्यों जोड़ना है ये आप समझो पहले। क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वर्ब नहीं है, हंगरिंग थोड़ी ना लिखेंगे, हंगरीड नहीं लिखेंगे। हंगरी एक क्या है, हंगरी क्या है, एक कर्म है। तुम भूखे थे ना, हंगरी की कोई वर्ब की फॉर्म नहीं बनती, तो क्या होगा, बीइंग हंगरी आई टुक ब्रेड जैम, ठीक है। जैसे हिज फादर वॉज बीटिंग हिम, ही स्टार्टेड क्राइंग, उसके पापा ने उसको मारा और इसलिए वो क्या होने लगा, रोने लगा। तो क्या होगा, बीइंग बीटन, आईएनजी लगा है तो हम क्या करेंगे, बीइंग आगे ले लेंगे, फिर बीटन बाय हिज फादर, किसके द्वारा, बाय हिज फादर, ही बिगन टू वीप। फिर द नेक्स्ट रूल इज व्हाट, इन द एक्शन इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब वी यूज पार्टिसिपल आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई एक्शन एसोसिएट होता है विद द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज अ पार्टिसिपल आफ्टर दैट वर्ब, तो हम क्या यूज करते हैं, पार्टिसिपल का यूज करते हैं। मतलब अगर कोई एक्शन, ऐसा जो काम है वो एसोसिएट है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वी पार्टिसिपेट आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जैसे आई सा ए मोहन, ही इज टीचिंग हिज नेप्यू, मैंने मोहन को देखा वो पढ़ा रहा था अपने भतीजे को, तो क्या होगा, आई सा ए मोहन टीचिंग हिज नेप्यू, बस हो गया। इसको मतलब ही वॉज तो ऑलरेडी यू हैव टू यूज ना, तो यू हैव टू रिमूव दिस। आई से मैन ही स्मोकिंग ए सिगरेट, आई से मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, ही इज अ, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट। फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉर्मिंग सिंपल बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर क्या है, फॉर्मिंग सिंपल बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसका रूल देखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव। व्हेन द वर्ब यूज्ड इन अ थर्ड फॉर्म past participle, we use that verb as an adjective with a noun it's modify। तो यहां पर मैंने आपको क्या कवर किया, यहां पे हमने आपको पूरा प्रेजेंट के रूल बताया, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये लिखा है पास्ट पार्टिसिपल, वी यूज द वर्ब एज एडजेक्टिव विद द नाउन इज मॉडिफाई। आई सा ए चाइल्ड, इट वॉज बर्न, आई सा ए बर्न चाइल्ड, तो जो बर्न है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट, तो आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मेरी खोई हुई बुक मुझे क्या हो गई, मिल गई। तो अब तीसरा हम देखते हैं, फॉर्मिंग सिंपल बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हम क्या करेंगे, हैविंग को पहले ऐड करेंगे फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। पहले हमने हैविंग को ऐड किया, फिर क्या लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ये किसकी बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है परफेक्ट पार्टिसिपल की। जैसे व्हेन द एजेंट इज परफॉर्मिंग टू टेक्स but there is a sufficient gap between both the action, we use perfect participle with the verb showing first action। मतलब when the agent is performing two tasks, अगर एजेंट कोई है और वो दो टास्क करता है, but there is a sufficient gap, और उनके बीच में एक अच्छा खासा गैप होता है, sufficient gap between both the action, we use perfect participle with the वर्ब शोइंग एक्शन। तो हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का, जब समय में गैप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइका हैड कंप्लीटेड हर ड्राइंग प्रोजेक्ट, सी वेंट टू मार्केट विद हर फ्रेंड मदर, सॉरी। तो हम क्या करेंगे कि माहिका ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिर वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई, मार्केट गई। तो हम इसको कैसे करेंगे, हैविंग कंप्लीटेड हर ड्राइंग प्रोजेक्ट, माहिका वेंट टू मार्केट विद हर मदर, ठीक। तो मतलब हम पहले चेक करेंगे कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस यू हैव टू यूज इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑल दिस डिटेल्स। फिर नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5, इफ देयर इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विथ वर्ब बी, वी यूजिंग हैविंग प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बाय द मास्टर, ही फेल्ट सॉरी, तो क्या होगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द मास्टर, द सर्वेंट फेल्ट सॉरी। So today I have to cover use of participle. Tomorrow I will
take the next part on term. So keep watching my channel English Gyan with me, and I will sure about that ki I have to complete all this grammar chapter and literature, and if you want then I have to cover lots of other subject. If you want, then for preparing the government job examination, you have to subscribe my channel and keep watching. Children, bye bye, take care.